यानी अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी हारती है। I don't want to, this not that I have said that I have made mistake in assessment, but I am the first one who in January said at the peak of राम मंदिर का कोई incremental वो बीजेपी को नहीं है। Let's spend a moment on the Congress's performance, because when you are speaking to top Congress leaders, strategists, they were thinking यार 75 आ जाना बड़े खुश होंगे। That's the basic sense they had कि कुछ होके 75 आ जाए, it will look respectful. They were almost at 100. Now, in states like Maharashtra, where they've picked up their best performance, the Congress was expected to be the Kamzor Kadi. Far from being the Kamzor Kadi, it's emerged as the powerful party over there. Why do you think the Congress has done so much better than people like you were expecting? देखिए, बीजेपी, कांग्रेस के दो स्टेट परफॉर्मेंस को मैं सीरियसली लूंगा। पहले तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि दिस इज द मोमेंट ऑफ रिवाइवल, दिस दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि जो कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड्स हैं, कर्नाटक वो जीते थे, वहां हारे हैं एक तरीके से। तेलंगाना अभी 4-5 महीने पहले स्वीप किया था, वहां उनको 50-50 हो गया। हिमाचल उनकी सरकार है, वहां वो 100% सीट हारे हैं। तो अगर कांग्रेस के लिए कोई पैन इंडिया रिवाइवल होता तो कम से कम अपने स्ट्रांग होल्ड में दे वुड हैव डन बेटर देन व्हाट दे हैव डन। बट 2 स्टेट्स, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, आई सिंगल आउट राजस्थान, बिकॉज महाराष्ट्र में फिर भी समझ में आता है कि बीजेपी ने बहुत जोड़ तोड़ की थी, एक वो बना हुआ था यार, एक सेंटिमेंट नेगेटिव है, और विदर्भा यूज्ड टू बी द स्ट्रांग होल्ड ऑफ कांग्रेस हिस्टोरिकली। राजस्थान पिछले 2 इलेक्शन में बीजेपी एक भी सीट नहीं हारी है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी राजस्थान में टू मेनी पीपल इज हायर देन व्हाट इट इज इन गुजरात। स्टिल कांग्रेस एबल टू विन 11 सीट। दैट शोज द मिसमैनेजमेंट पोस्ट असेंबली विक्ट्री बाय बीजेपी। जो राजस्थान में मुझे समझ में आ रहा है कि जीतने के बाद बीजेपी ने जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द चीफ मिनिस्टर। Every significant community that supported BJP is probably got this feeling कि भाई हमें तो कुछ मिला ही नहीं। Whether you are Gujar, whether you are Meena, whether you are Rajput, whether you are Adivasi, whether you are every community they felt कि भाई हमें तो कुछ मिला ही नहीं। That so Rajasthan is a case study. महाराष्ट्र तो बीजेपी ने जो जहां भी जोड़ तोड़ आपने की है, चाहे आप कर्नाटका में करें या राजस्थान महाराष्ट्र में करें, it was kind of expected. Not of this magnitude. Everyone said this time Maharashtra, India will do very well. But कहीं ना कहीं in this answer, लेकिन not to the extent which they have done. But in this answer of yours, कहीं ना कहीं ये है कि while brand Modi in a sense may have taken a bit of a hit, as you said, the intensity. But this I said even before election. Do you accept that while brand Modi therefore may have taken a hit कि आप मोदी के नाम पर 543 सीट अब नहीं लड़ सकते, आपको लोकल इश्यूज देखने पड़ेंगे, लोकल कैंडिडेट्स लाइक राजस्थान एग्जांपल। ऑन द अदर हैंड, brand Rahul, who was totally written off, do you sense that he has got greater acceptability in a sense among the traditional Congress's coalition? Are we seeing both brand Modi getting hit, which you are accepting in a way? Not in a way, I am accepting. I have said this on record before elections. यानी ब्रांड मोदी पर अगर 300 भी सीट आता तो भी ब्रांड मोदी has gone down. That data and numbers are out. By contrast, has brand Rahul in some way not really? No, not really. It has revived to an extent of those who are Congress supporters, voters, cadre. Amongst them, there is a greater confidence that this is the guy who can lead us to victory. पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस फिर यूपी में कैसे होता है? इतना अच्छा परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में कैसे हो जा सकता है? ऐसा है राजदीप, अगर आपका बच्चा फेल कर रहा है और उसको 60 नंबर आ जाए तो आप लड्डू बांटोगे कि मेरा लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। आपका लड़का, दूसरा लड़का जो 90% नंबर लेके आता है, उसको अगर 75 आएगा तो यू वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड। अगेन आई रिपीट, this is the 3rd worst performance of Congress in its history. इंदिरा जी के टाइम में जब कांग्रेस हारी थी 77 में, if my memory serves me well, कांग्रेस won 154 सीट। 99 या 101, 102 सीट is not something that is signaling a great revival of Congress of sort. It is just showing कि yes, they have a chance. नहीं, पर यही तो होता है ना कांग्रेस का। बीजेपी बात कर रही थी कांग्रेस मुक्त भारत की, जनता ही कांग्रेस को खड़ी कर देती है। अपना परफॉर्मेंस इन महाराष्ट्र ये बात तो 100 दफे हम लोग कह चुके हैं कि इस देश में अपोजिशन को आप खत्म नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है, कि राहुल कर रहे हैं, कि मोदी। जब बीजेपी 2 थी तब कांग्रेस अपोजिशन को खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि जिस देश में 600 मिलियन पीपल आर लिविंग ऑन लेस देन 100 रुपीज अ डे,
हमने आपने बात करी है रूरल इंडिया में जहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, शहर से 50 किलोमीटर दूर पे, आप जितना विश्वगुरु की बात कर लो, जितना राम मंदिर की बात कर लो, जितना आप सेक्युलरिज्म की बात कर लो, कोई मेथड ऐसा नहीं है कि वो सबको हमेशा खुश रखे। यानी अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी हारती है। I don't want to, this not that I have said that I have made mistake in assessment, but I am the first one who in January said at the peak of राम मंदिर का कोई incremental vote बीजेपी को नहीं है। You have told me in an interview. I've told you, I've told in many other things, many other interviews also. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुत्व खत्म हो गया। आज मुझे किसी ने पूछा कि अब क्या आपको लगता है हिंदुत्व खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व जो बीजेपी का कोर है वो कॉफी है, फ्रॉथ थोड़ा कम हो गया इस चुनाव में। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी हिंदुत्व छोड़ के अब कुछ दूसरा So करने what does लगेगी। this mean for the future of the Hindutva project? It will continue the way it is with some degree of tinkering here or there. आप जब वाजपेयी जी की सरकार हारी 2004 में, उसके बाद भाजपा ने क्या हिंदुत्व को छोड़ दिया? अगर 2004 में हारने के बाद नहीं छोड़े तो अभी एक झटके के बाद क्यों छोड़ेंगे? I see the real danger for BJP is if they get one more round of electoral drubbing in coming elections. तो उस पे बात करते हैं। अगर इस ये जितनी बात हो रही है स्टेबिलिटी कोलिशन, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर 240 जस्ट फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड, भाई पिछले 30 साल में 240 एक बार नरसिम्हा राव जी को आया है। 232. नो इट वाज 241। 232 इन जून 1991, फरवरी में फिर बाकी इलेक्शन हुए पंजाब के, तो उसको जोड़ के 240 हो गया था, तो सेम नंबर। और वो गवर्नमेंट दे डिड एवरीथिंग। दोज वर सेइंग वेदर मोदी विल बी एबल टू डू थिंग्स, बिग थिंग्स और नॉट, ऑफ कोर्स ही विल, बिकॉज नरसिम्हा राव जी ने करके दिखाया है। दूसरा, लोगों को ये है कि भाई मोदी ने कोलिशन कैसे चलाना है, ये तो आज तक कोलिशन चलाया नहीं है। आई वुड से गिवन हिज एक्सपीरियंस ही वुड नेविगेट थ्रू दिस। नहीं, कोई बदलाव आएगा? मोदी जी जिस तरह से सरकार चलाते हैं, यूनिलैटरलिज्म कम होगा या नहीं? जितनी बदलाव की जरूरत है वो आपको दिख रहा है। जब वो विक्ट्री स्पीच देने आए तो बीजेपी के ऑफिस से पूरे स्पीच में बीजेपी की विक्ट्री नहीं बताया, एनडीए की विक्ट्री बताया। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जीते हैं, नायडू जी के नेतृत्व में आंध्रा में जीते हैं। तो आई एम सेइंग दीज आर हार्ड कोर पॉलिटिशियंस। ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट करने में उनको बहुत तकलीफ नहीं आएगी जितना लोग समझ रहे हैं। what should people expect? और How will दूसरा, the nature of governance ये जो लोग change? बता रहे हैं कि जो बहुत चल रहा है 5 दिन से कि नायडू नीतीश विल कंट्रोल, आई डाउट। Why? Because first of all, the numbers are not such where even if Naidu and Nitish were to leave, that is not a guarantee कि other side will make the government. So you think this government will last 5 years? No, I am saying कि the crucial next step is the next 3 state elections, and the good thing about for Maharashtra, opposition is Haryana, Jharkhand. yes, good thing about for opposition is कि in those 3 states BJP is on back foot as of now. नहीं तो उसी को एक सेकंड स्पेंड करते एक हैं। मिनट खाली मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि देखिए पूरे रिजल्ट से हुआ क्या है, नंबर में कोई बदलाव नहीं है, सरकार उनकी बनी है। आप देखिएगा सारे की मिनिस्ट्री वगैरह सब की डिसीजन मेकिंग सब उनके हाथ में ही रहेगा। पीएमओ वुड बी ऑलमोस्ट एज स्ट्रांग एज इट वाज, बट जो मोदी की एक इनविंसिबिलिटी वाला ऑरा था उसको बड़ा धक्का लगा है। और जो ऑपोजिशन में है, जो उनसे लड़ना चाह रहा है, उसको एक चीज आया है कि भाई स्टेट में नहीं, मतलब लोकसभा में भी इनको हरा सकते हैं। क्योंकि अभी तक क्या था कि स्टेट में भले हार जाए, जब व्हेन इट इज ऑन द टिकट ऑफ मिस्टर मोदी एवरीवन वोट्स फॉर हिम, सो यू कैन नॉट डिफीट हिम, चैलेंज हिम इन लोकसभा। वो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन को आया है, वो ठीक बात है, उनको धक्का लगा है, देयर चिप्स आर डाउन। बट फॉर पीपल, द हार्डकोर पॉलिटिशियंस टू एक्ट ऑन इट, दे विल नीड 1 or 2 more rounds of confirmation. आप महाराष्ट्र हार जाओ तो आप नायडू और नीतीश की बात कर रहे हैं। आई वुड रादर लुक एट एकनाथ शिंदे 7 MPs वेयर दे विल गो, तो उस पे दे विल मूव स्ट्रेट। टाइम स्पेंड करते हैं ना। ये बताइए, अगर इस लोकसभा नतीजे को बेस माना जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पे क्या इम्पैक्ट होगा, हाउ डज दिस एक्स्ट्रापोलेट इनटू द असेंबली? विधानसभा इलेक्शन तो अलग है, नहीं, पर फिर भी इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। बेशक, पर इसको आप अगर मानते हैं बेस ना माने। कि आज की तारीख में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में ऑपोजिशन इज ऑन टॉप, Yes. बीजेपी बैकफुट पर है। Yes. तो ऑपोजिशन को मौका है। अगर ये झारखंड में भी यस, तो अगर ये 3 राज्य ऑपोजिशन, देखो ये नहीं क्या है कि झारखंड में तो पिछली बार हार रहे हैं। झारखंड, एक मिनट, अक्टूबर और दिसंबर के बीच ये 3 राज्य है। अगर इन 3 राज्यों में ऑपोजिशन जीतती है तो आप कह रहे हैं वो तब चैलेंज होगा मोदी जी की सरकार। एब्सोल्युटली, देन दे विल नॉट बी एबल टू डिफेंड। तब सरकार नहीं चल पाएगी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सरकार नहीं चल पाई। तब आपको वो जो सारी अभी सिनेरियो लोग बिल्ड कर रहे हैं, जो आज का बिल्ड कर रहे हैं, वो तब 6 महीने। और मुझे लग रहा है कि इंडिया
अलायंस के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज को समझा है. दैट इज वाई दे हैव सेड कि वी विल टेक इट एट द राइट टाइम. सो अगर आप अपोजिशन में हैं अभी मेरी समझ से, तो आपको सब कुछ छोड़ के उन 3 राज्य में तो एक-एक मिनट जीतना spend करते हैं ना है. हर 3 और स्टेट अगर आप बीजेपी हैं तो कम व्हाट में आपको 3 राज्य में कम से कम 2 राज्य बचाने हैं. अगर वो नहीं बचा, देन यू विल सी इंटरनल डिसकंटेंट और एलाइज रनिंग अवे और इंटरनल डिसकंटेंट. It could. आप कह रहे हैं केवल बाहर से नहीं, आप कह रहे हैं Anything. इंटरनल डिसकंटेंट भी हो सकती है राजदीप, बीजेपी आरएसएस में. आपने मैं वो नहीं कह रहा हूं किसमें होगी, मैं कह रहा हूं इंटरनल डिसकंटेंट और आउटसाइड. आप इतने दिन से राजनीति कवर करते हैं, अल्टीमेटली द लीडर्स विल फॉलो द पब्लिक मूड. अगर उनको लगेगा कि भाई अब इनकी करेंसी इतनी कम हो गई है कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, देन पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट ऑप्शंस. अभी जो लोगों को लग रहा है कि भाई झटका तो लगा है, लेकिन ही इज डाउन बट नॉट आउट. Okay.